Okay, so this is the second class of company analysis past and present. In the first class, formally speaking, we did not start. I just gave some warm-up type examples on Starbucks and on Amazon. So today we will formally start the chapter. I think in the last class notes which were dictated, I had mentioned these 4 learning modules. Na? This is learning module 5, I believe. 5, 6, 7, 8, which are connected. The last class's notes. So learning module 5 is company analysis past and present. Learning module 5 is industry and competitive analysis. Learning module 7 is then company analysis forecasting the future, and learning module 8 is valuation. Correct? Okay. So there is a particular challenge that the CFA Institute conducts every year, and there is no match to it by any other institute, any other entity which organizes. CFA Institute Championship. It occurs every year, in which universities across the globe participate. I don't know the prize money. What is the prize money? मेरे को याद नहीं है. So a team of 4 people, 5 people from Asia Pacific region, from Americas, okay, and from other regions they participate. It is conducted by the local CFA society. But ये बात पक्का है कि those who win that session, those who win that competition, उनका प्रोफाइल अलग ही हो जाता है. If you check their profile by going to the LinkedIn, कि those who won the challenge in 2025, where are they working? What is their age? And you will get to know what I am talking about. So I would like to start with that because this is connected to this chapter. Just one second. So these were the winners from 2025. इनमें से 2 Indians type लग रहे हैं. If you look at their faces. So this is a university, Kozminski University in Poland. And इनके 5 members थे who produced a research report on DOM Developments. There is a real estate company, DOM Developments in Poland. Please name some real estate companies in India. Huh? Okay, somebody saying PS Group. I think PS Group is not listed. Can we have some listed companies जिनका shares listed है? Okay, somebody saying DLF. ठीक है. Godrej Properties. शोभा डेवलपर्स, वहाँ बहुत जवाब आ रहे हैं. प्रेस्टीज. ठीक है. तो वैसे ही पोलैंड में देयर इज अ पर्टिकुलर कंपनी बाय द नेम ऑफ DOM डेवलपमेंट्स. इट इज़ द स्टार ऑफ पोलैंड. एंड उस कंपनी के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट लाया था, इन 5 ने मिलके. And the report won the first prize in 2025. We don't have the time to make too much of diversion, but otherwise इन 5 के LinkedIn प्रोफाइल में जाके जरूर चेक करना चाहिए आपको अपने टाइम पे. It is not a part of studies. होता है ना जिज्ञासा वाइज, इंक्विजिटिवनेस. इनका एज बहुत ज़्यादा लग रहा नहीं है. कैन यू सी दैट? ठीक है. तो इन दैट केस वेयर आर दे प्रेजेंटली प्लेस्ड, इन विच कंपनी, ओके, एंड वेयर आर दे वर्किंग एंड ऑल दैट यू कैन. ये 2025. वैसे ही 2024 में, लेट मी जस्ट क्लिक दिस लिंक.
So this is the CFA Institute website. The particular page is on past championship, जो challenge हुए, past research challenge champions, और इसमें you will find 2025. इसमें Kosminski University was the winner, represented by the CFA Society Poland, जैसे CFA Society India है. और इन्होंने जो रिपोर्ट लिखा वो रिपोर्ट लेफ्ट साइड में, रीड द टीम्स रिटन रिपोर्ट, देखा आपको जो क्लिकेबल लिंक है, और राइट साइड में व्यू द टीम्स प्रेजेंटेशन PDF. तो एक है रिपोर्ट और एक है प्रेजेंटेशन. रिपोर्ट करीब 20-22 पेज का होगा एंड प्रेजेंटेशन में तो PPT स्लाइड्स है ना, तो करीब 100 पेजेस का होगा. तो दे वे चेक्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द रिपोर्ट, कितना इन डेप्थ एनालिसिस किया है कंपनी का. दे वे चेक्ड ऑन द इनपुट अजम्पशंस एंड ऑन द प्रेजेंटेशन स्किल्स. जैसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स कॉलेजेस में होते रहते हैं ना, इंटर कॉलेज या व्हाटएवर, इंडिया में भी, तो ये हो गया उसका जेनिथ पीक लेवल. नाउ आई एम सेइंग सो नॉट टू market about the global championship of the CFA Institute, but because this is connected. जिस तरह का रिपोर्ट यहाँ पे है, the report which is there over here, this report, इतना insightful report कोई भी particular Indian research based company का, चाहे वो HDFC Securities हो, चाहे Kotak Securities हो, चाहे जो भी हो, there is no match to the level of flow in the this thing. ठीक है. Now this is a report on DOM development. I told you the name DOM, DOM development. बता रहा है it is traded on the Warsaw Stock Exchange. If you remember some history lessons, Poland, Hitler, Warsaw, all that part goes on ना. Poland वहीं पे strategically located है. Warsaw Stock Exchange. Industry real estate. 31 Jan 2025 का रिपोर्ट है, अभी इस साल का. द करेंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 213 पोलिश करेंसी एंड द टारगेट प्राइस अकॉर्डिंग टू द टीम इज 259. 213 पे स्टॉक है और 260 का टारगेट है. दे कैलकुलेटेड द परसेंटेज 22% अपसाइड है. रिकमेंडेशन इज टू बाय, रिकमेंडेशन इज टू बाय. पीछे जो इमेज दिया है वो रियल एस्टेट का इमेज दे दी है, ठीक है ना. एंड देन दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द सेम. तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, हाउ मेनी पेजेस इज इट, 21 पेजेस. ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, रिसर्च रिपोर्ट बनाया है, दिस इज व्हाट यू शुड बी केपेबल ऑफ इफ यू वांट टू मेक इट इनटू द इक्विटी रिसर्च इंडस्ट्री. दिस इज व्हाट यू शुड बी केपेबल ऑफ, कि मैं भी किसी कंपनी को पकड़ के उसके ऊपर रिपोर्ट बना पाऊंगा, ठीक है, विच इज़ नॉट प्लेगियराइज्ड, which is not cut copy paste from daya baya, which is using AI tools, no doubt about it, because somebody doesn't use AI tools, that is stupidity and nothing else. But AI is just augmenting your natural intelligence, it is not going to replace the same. तो AI को use करके ये report बनाना आना चाहिए together with valuation, and this is chapter number 5, 6, 7 and 8. ठीक है. तो क्या होता है, टारगेट पता चल जाता है ना कि सर why are we studying, what is the target for it, this is the target. We should be able to prepare a research report from your career perspective, from your exam perspective. These are chapters at the end of the day जिसका multiple choice questions आएगा. We should be able to crack them, and that's a very very easy stuff. तो cracking the chapter, scoring full marks is very easy. Making a beautiful report is a challenging task. I will not enforce what upon people, which means that अपने क्लास में तो focus will be primarily on academics, but obviously बीच बीच में मैं hints जरूर दूंगा, और जो ड्राइव पे शेयर किया जाएगा वो बीच बीच में एक्स्ट्रा स्टफ शेयर किया जाएगा जो ऑप्शनल होगा. यू विल अंडरस्टैंड, ओके, ये सब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किए हैं, ठीक है. तो आपको नहीं करना है, आप मत करो. यू स्टडी ओनली फॉर द एग्जाम, देयर इज नो इशू, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना. बट अदरवाइज इफ यू वांटेड टू नो हाउ टू मेक इट बिग, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है. देयरफॉर आई स्टार्टेड विद दिस. मेरे ख्याल से इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी के बिना इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर द रिपोर्ट. अंडरस्टूड. तो कॉलेज में व्हेन यू एंटर द सेकेंड ईयर, या जो लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं, यू कंप्लीट दीज चैप्टर्स, यू शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन इन द कॉलेज वे योर थिंग स्टार्ट्स कि हाँ चलो वी आर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, ठीक है, विच इज़ नॉट ऑफ दिस मैच, बट कहीं ना कहीं से थिंग्स आर स्टार्टिंग. ओके. तो
अब बात आती है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिपोर्ट, और एक मिनट ये बता दूं यहाँ पे कि जैसे 2025 का रिपोर्ट था ना, वैसे 2024 का है, ठीक है, वो एक दूसरे कंपनी पे हुआ था। 2023 का मेरे को बहुत अच्छा लगा था। दिस वाज ऑन सम एयरलाइन कंपनी, क्वांटास एयरवेज, उसके ऊपर था ये रिपोर्ट। तो दिस इज ग्रेट स्टफ एनीवेज कमिंग आउट ऑफ इट। स्क्रीन हटाना। सर आप बोल रहे हैं कि रिपोर्ट बनाना है, तो देखा जाए तो इफ somebody is writing a chapter and the target is to make a research report, the first LOS should be, so what is the format of the report? What is the format of the report? The structure of the report, the tone of the report, the format of the report. That is LOS A of this chapter. क्या are you aware of the contents of a research report? The format of it वो अपने को पहले LOS A में है, ठीक है। उसके बाद अब उसके अंदर जाना पड़ेगा ना, तो फॉर दैट यू पिक अप अ कंपनी, मे बी अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, मे बी IT कंपनी, मे बी अ सीमेंट कंपनी, मे बी अ रियल एस्टेट कंपनी, मे बी अ company which is in artificial intelligence, NVIDIA, okay, and that company का you will study the business model of the company, कि वो कंपनी का धंधा क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, how does it earn or how does it propose to earn if it's loss making company, वो सब स्टडी करोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या क्या रहेगा वो डिस्कशन है। तो इन दैट केस लेट मी जस्ट टेक यू टू द ओके, 1 सेकेंड। तो दिस इज द कोर रीडिंग ऑफ द CFA इंस्टीट्यूट, और इस कोर रीडिंग में इक्विटी का कोर रीडिंग है। आई एम गोइंग टू लर्निंग मॉड्यूल 5। दिस इज द चैप्टर कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट। These are the learning outcome statements. इसमें पहला learning outcome is describe the elements that should be covered in a thorough company research report. What are the elements to be covered in a report? Second LOS is determine a company's business model. धंधा क्या करते हैं? Third LOS is company का revenue and revenue drivers. Were we discussing about this last class? कंपनी का रेवेन्यू एंड रेवेन्यू ड्राइवर्स, क्या आपने इसका बात कर रहे थे लास्ट क्लास? स्टारबक्स पे जो बात हो रहा था वो LOSC का ही तो बात हो रहा था। टॉप डाउन, मार्केट शेयर इनटू मार्केट साइज, या बॉटम अप, ओके, याद होगा नंबर ऑफ स्टोर्स इनटू ऑल दैट। तो दैट वाज रेवेन्यू एंड रेवेन्यू ड्राइवर्स का डिस्कशन लास्ट क्लास छेड़ा गया था। कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल यूजिंग की मेजर्स, एंड लास्ट इज कंपनीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। 5 LOS है, देयर आर 5 LOS, LOS A B C D E, इसको कवर कर रहे हैं इस चैप्टर में। ओके, दिस इज कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं। लोग मेरे से कंपटीशन का सारा डिटेल्स मांग रहे हैं, कौन से मंथ में होता है, कौन से डेट पे होता है, पार्टिसिपेशन का फॉर्म कहाँ भरते हैं, अगर नॉन CFA चार्टर होल्डर वो पार्टिसिपेट कर सकता है क्या। द पॉइंट इज़ दैट अभी अपने चैम्पियनशिप का डिटेल थोड़ी डिस्कस करेंगे,
जिसको भी इंटरेस्ट है वो पोस्ट द क्लास अपने आप ही जाके सारा रूल्स रेगुलेशन पढ़ सकता है. द पॉइंट वॉज टू जस्ट इनकरेज एंड इंडिकेट. ओके, सो चैप्टर का नाम आपने लिख लिया होगा, कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट. लास्ट क्लास मैंने बोला था दिस इज सॉर्ट ऑफ अ टाइम सीरीज एनालिसिस, बिकॉज किसी का अगर तुम हिस्ट्री एनालिसिस कर रहे हैं ना पास्ट, तो दैट इज लाइक अ टाइम सीरीज एनालिसिस. और इसके नेक्स्ट चैप्टर में जो लर्निंग मॉड्यूल 6 है, जहाँ पे अपने इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस सेक्शन एनालिसिस. व्हाट एनालिसिस? क्रॉस सेक्शन, कि अपने कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं विद द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री. और ये है टाइम सीरीज, कंपनी को कंपेयर करें पास्ट में ये क्या कर रहा था, 5-7 साल से क्या हो रहा है. ओके, और नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, बाकी प्लेयर्स लोग क्या कर रहे हैं सर, ठीक है, इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन दोनों के हेल्प से फोरकास्ट, उन दोनों के हेल्प से फोरकास्ट, और उस फोरकास्ट के हेल्प से वैल्यूएशन. तो ये जितने बार बोले उतना कम, यानी कि आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए. इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं सर, कंपनी का पास्ट एंड प्रेजेंट स्टडी कर रहे हैं. नेक्स्ट चैप्टर में बाकी इंडस्ट्री का प्लेयर्स देख रहे हैं. उसके नेक्स्ट चैप्टर में इन दोनों के हेल्प से फोरकास्ट कर रहे हैं, और उसके नेक्स्ट चैप्टर में फोरकास्ट के हेल्प से वैल्यूएशन कर रहे हैं. वैल्यूएशन जो आया दैट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, IV0. इंट्रिंसिक वैल्यू शुड बी प्राइस ऑफ द शेयर. अगर वो ज़्यादा आया, जैसे ये लोग का 260 आया है पोलिश करेंसी, और शेयर का दाम 213 है, तो द शेयर इज अंडर प्राइस्ड, द शेयर इज अंडर प्राइस, सस्ता है, वी शुड बाय. होना चाहिए 260, दाम चल रहा है 213, ठीक है. तो देयरफॉर बाय रिकमेंडेशन. उल्टा आता, द शेयर का दाम शुड बी 160, जबकि प्राइस चल रहा है 220, तो शेयर इज ओवर प्राइस्ड, शेयर इज ओवर प्राइस्ड, वी शुड नॉट बाय, एंड इफ पॉसिबल वी कैन सेल, शॉर्ट सेल, सेल करना चाहिए शेयर को अपने को, ठीक है. तो और अगर 220 के आसपास ही आया तो मे बी यू विल से होल्ड. तो बाय रिकमेंडेशन और सेल रिकमेंडेशन और होल्ड रिकमेंडेशन, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस, कि व्हाट रिकमेंडेशन आर वी गोइंग टू गिव, ठीक है ना. कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट. तो इसमें कुछ फिगर्स से स्टार्ट कर रहे हैं. लिखो फिर से वार्म अप, बिकॉज मेरे से नंबर्स के बिना पिकअप आता नहीं है, एंड आई हैव सीन इन द क्लास ऑल्सो इट डजंट कम. फॉर द नेक्स्ट ईयर ब्रैकेट ईयर 1, तो यूजुअली ये हैबिट होता है कि जो साल अभी बीता है ना, उसको अपने ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? ज़ीरो. और जो साल आने वाला उसको बोलते हैं ईयर 1. क्या बोलते हैं? ईयर 1. इट्स लाइक जहाँ आपने खड़े रहते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट होती है, अमिताभ बच्चन वैसा. तो जो बीता है वो ज़ीरो है, और जो आने वाला है वो ईयर 1. तो ईयर 1 का सपोज ये फोरकास्ट है, हैव अ लुक. रेवेन्यू इज गोइंग टू बी 40,000 रुपीज़ करोड़. कॉपी करना है आपको. COGS, you know the full form, I think, cost of goods sold. COGS would be suppose 18,000. So gross profit is 22,000 less SGA. Anybody guessing the full form? COGS was cost of goods sold, raw material cost, labor cost. Okay, goods को बनाने में जो direct cost लगता है. SGA, can you guess it? Selling. A for administration, G for general. Selling, general and administrative expenses. Selling, general, administrative expenses, जो rent लगता है वगैरह, ठीक है. तो selling, general, administrative expenses, दैट इज सपोज 10,000 करोड़. ये फोरकास्ट है, सारा फिगर्स मन से लिख रहा हूँ जस्ट फॉर द पिकअप ऑफ इट. वी रीच EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? 12,000. सर आपने डेप्रिसिएशन दिखाया नहीं. मैं एज्यूम कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन COGS और SGA में मिला हुआ है. जो फैक्ट्री
में जो प्लांट वगैरह उसका डेप्रिसिएशन COGS में मिला हुआ है, जो अपने ऑफिस में इक्विपमेंट वगैरह है उसका डेप्रिसिएशन SGA में मिला हुआ है, ठीक है ना, जहाँ का डेप्रिसिएशन था वहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मेरा EBIT आ गया। अगर COGS और SGA में डेप्रिसिएशन नहीं मिला हुआ है तो ये जो आया है दिस इज कॉल्ड EBITDA, EBITDA। क्या बोला मैंने? EBITDA। फुल फॉर्म क्या होगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड amortization। EBITDA। Depreciation is something that is understood by everybody, I think. No need for me to divert one more. And amortization is the same as depreciation but used for intangible asset. Which asset? Intangible asset like patent, licenses, उनका amortization होता है और plant machinery का depreciation होता है, ठीक है ना। तो EBIT 12,000 है, less interest expense से 2000। आई होप ये डाउट नहीं आया कि सर ये नंबर्स कहाँ से आया, मन से आ रहा है। तो आ गया प्री टैक्स प्रॉफिट PBT 10,000 लेस टैक्स से एट द रेट ऑफ 25% 2,500। सो वी गेट PAT 7,500। PAT is also called net income. EBIT is called operating profit. EBIT is called operating profit or net operating income. Operating income. PAT is called net income. Because ये सब मौका है टर्मिनोलॉजी को इंक्रीज करने का अपने वोकैबुलरी में, ठीक है ना। और धीरे धीरे यूज़ करते करते टर्मिनोलॉजी अपने आप आ जाता है, टर्मिनोलॉजी बैठ के रटना नहीं पड़ता है, ठीक है। यू स्पेंड टाइम एंड यू गेट टू नो मोर एंड मोर। तो PAT 7,500। यूजुअली अपने को प्रेफरेंस कैपिटल को बीच में लाना नहीं चाहिए, 99% केसेस में होता नहीं है, तो आई विल नॉट डिग इनसाइड दैट। देयरफॉर PAT है और नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डू नॉट थ्रो अ डाउट लेटर ऑन कि सब प्रेफरेंस कहाँ गया, नहीं था। Number of equity shares say 2,000. So EPS 7,500 divided by 2,000. Earnings per share 7,500 by 2,000 is equal to what? 3.75. EPS 3.75. Earnings per share 3.75. Now when you do FSA फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक टॉपिक है ना अपने 10 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें वी विल हैव वन चैप्टर ऑन रेवेन्यू कि कंपनीज लोग जो रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग रेवेन्यू दिखा रहे हैं और रेवेन्यू का स्केड्यूल है, इसमें क्या झोल है, इसमें क्या गलत दिखा रहा है, इसमें क्या विंडो ड्रेसिंग कर रहा है, इसमें क्या फ्रॉड कर रहा है, उसके ऊपर अलग चैप्टर है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एनालिसिस कैसे होगा उसका अलग चैप्टर है, SGA का एनालिसिस कैसे होगा उसका अलग चैप्टर है। अंडरस्टूड? FSA इज अबाउट नॉट मेकिंग द अकाउंट्स बट द अकाउंट्स विच हैव बीन मेड इज ऑल बुलशिट स्टफ। इट हैज टू बी एनालाइज्ड कि उसके अंदर क्या गड़बड़ है, हाउ टू extract economic reality out of the fabricated accounts presented by chartered accountants. That is FSA. Understood? Equity is related to FSA because equity is using FSA as the input. FSA का input use हो रहा है ना equity में, तो can somebody do equity without FSA? No, it's not possible. So I'm just trying to say the interlinkage कि equity का तो कुछ कर ही नहीं जा सकता है without the balance sheet, without the PL account, without all that. ठीक है ना? तो ये सपोज नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट हुआ, बट सर ये सारा का सारा फोरकास्ट जो है ना कि रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर 40,000 करोड़ होगा, ये तो अपने को करना पड़ेगा रियल लाइफ में। जो भी कंपनी तुम पकड़ोगे उसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू पता है, नेक्स्ट ईयर का तुमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? एक बार चेक करोगे ना उसका पास्ट का रेवेन्यू का ग्रोथ क्या था, उसका ड्राइवर्स क्या है, उसका मार्केट शेयर क्या है, उसका नंबर ऑफ स्टोर्स क्या है, उसका फुटफॉल क्या है, वो प्राइस क्या चार्ज करता है, क्वांटिटी कितना बेचता है, दैट इज रेवेन्यू का ड्राइवर्स का एनालिसिस। वैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है, बाहर से इंपोर्ट करता है, अंदर से होता है कहाँ पे, लेबर कॉस्ट, ये सब क्या है। वैसे ही रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, SGA एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अंडरस्टूड? इन सब का एनालिसिस करना पड़ेगा। देयरफॉर द चैप्टर रेवेन्यू
कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, किसका एक बार इनका पास्ट एनालिसिस दिखाइए, ठीक है। तो पास्ट में देयर इज अ वेरी ऑफन यूज्ड एंड अब्यूज्ड वर्ड कॉल्ड CAGR. CAGR is called compounded average growth rate. What? Compounded average growth rate. Do not copy. Do not copy. कुछ लिख रहा हूँ बोर्ड पे, कॉपी मत करना। कंपनी का रेवेन्यू बता रहा हूँ क्या था, 27,000 करोड़, 29,200 करोड़, 33,000 करोड़, 37,000 करोड़। ये लास्ट 4 ईयर्स का रेवेन्यू था। ये लास्ट 4 ईयर्स का रेवेन्यू था। आपने नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट किया है 40,000 करोड़, ठीक है, मैंने के लिख दिया है, के इज ओके। 27,000 करोड़, 29,200 करोड़, 33,000 करोड़, 37,000 करोड़, ये लास्ट 4 साल का था, ठीक है। तो इसका CAGR प्लीज़ बताना, कैलकुलेटर प्लीज़, इसका CAGR प्लीज़ बताना, इसका ग्रोथ रेट। शो द बॉडी लैंग्वेज प्लीज़, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं, ओपन द कैलसी। कैलसी पे ऐप आपके डाउनलोडेड होना चाहिए। यू कैन नॉट स्लीप एंड टेक द क्लास, यू हैव टू पार्टिसिपेट। यू डोंट नो, पार्टिसिपेट विद द नेबर, खासकर जो फेस टू फेस से बैठे हैं वो लोग। यस प्लीज़। Vivek is saying 11.07%. Chaitanya Mayank are saying 31.55%. क्या अलग अलग आंसर आ रहे हैं? 11% है, 11.07% आ रहा है CAGR। बाकी लोग ट्राई करो, बाकी लोग ट्राई करो प्लीज। विश्वनाथन का 8.2%। तो फिर क्या बिल्डिंग ब्लॉक क्लास किया हुआ है? CAGR निकालने में यू हैव टू पुट दिस वन लास्ट वाला एज FV, यू हैव टू पुट दिस एज PV नेगेटिव में, ओके। एंड कितने बार चेंज हुआ है? 1, 2 और 3। यू हैव टू पुट 3N एंड CPT I/Y। प्लीज कैलकुलेट नाउ। 27 प्लस माइनस PV, 37 FV, 3N CPT I/Y। 3N होगा, 4N नहीं। 3 बार चेंज हुआ है। ग्रोथ होने का मौका कितने बार मिला है यहाँ पे बोर्ड पे? 3 बार। 4 बार ग्रो नहीं हुआ है, 3 बार ग्रो हुआ है। 3N CPT I/Y। अब सबका 11.07% आ रहा है स्क्रीन पे, तो सबका आ रहा है क्लास में। इनकेस कुछ कंफ्यूजन हो रहा है सेकंड क्लियर TVM या कुछ, तो अपने नेबर से कंसल्ट करो। जिसका नहीं आ रहा है, टेक द बेनिफिट ऑफ द फेस टू फेस क्लासेस। व्हाट इज द इश्यू? हो सकता है किसी का फर्स्ट क्लास है, पार्टिसिपेट विद द नेबर, डिस्कस। दिस इज द कैलकुलेटर। सेकेंड क्लियर TVM 27 नेगेटिव, प्लस माइनस किया PV। लास्ट वाला 35 था क्या? 37 FV, 3N CPT I/Y। 11.07%, 11.07%, ठीक है। दिस इज कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट, बिकॉज ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। बच्चे क्लास में जाए तो F इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R पावर N। 37 इज इक्वल टू 22 या जो भी था फर्स्ट वाला इंटू 1 प्लस R टू द पावर 3। सॉल्व फॉर R, वो R निकाले। इट्स गुड ना, द कैलकुलेटर गिव्स इट टू अस, वी डोंट हैव टू डू रेकलेस स्टफ ऑफ कैलकुलेटिंग R पावर 3। वहाँ भेजेंगे, कैलकुलेट करेंगे सब। मेरे को मज़ा आता है, तो मज़े का पैसा नहीं है कुछ रियल लाइफ में, ठीक है। तो इन दैट केस 11.07% इज द CAGR, ठीक है। 11.07% इज द CAGR। तो सर करीब 11% से ग्रो हुआ है। इफ यू बिलीव दैट दिस ग्रोथ विल टेक प्लेस नेक्स्ट ईयर, तो 37 इंटू 1.1107 चेक,
37 into 1.1107, 37 into 1.1107, 41.1, तो 41.1 का फोरकास्ट नेक्स्ट ईयर का होना चाहिए था, बट एनालिस्ट ने फोरकास्ट किया है 40,000, सॉरी, एनालिस्ट ने फोरकास्ट किया है 40,000। जो पास्ट का ग्रोथ रेट था उससे थोड़ा कमती ग्रोथ नेक्स्ट ईयर होने वाला है, बिकॉज केवल पास्ट का ग्रोथ को नेक्स्ट ईयर में चेपना इज कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो पूरे बाजार में हो रहा है। लिंक्डइन में जब जाएंगे ना, लोग चमका चमका के अपना रिसर्च रिपोर्ट डाल रहे हैं उसके अंदर, वो दूर से देखेंगे लगेगा बाप रे क्या बनाया है, अंदर जाएगा देखिएगा क्या गंदगी डाल रखा है। पास्ट का ग्रोथ रेट को फ्यूचर में चेप दिया हर आइटम के लिए, COGS CAGR निकाल लो, चेप दो, तुम्हारा सुंदर सा डेकोरेटेड कलर ओरिएंटेड निकल जाएगा। मेरा कल एक पोस्ट आया था लिंक्डइन में अबाउट दिस ओनली, पीपल आर बिकमिंग एक्सेल निंजा, कि एक्सेल बनाना आता है बाकी कुछ नहीं आता है, पर एक्सेल बढ़िया से आता है, ठीक है। तो वी हैव टू डिग इनसाइड कि सर 40,000 क्या होगा। लेट मी शेयर अ वेरी डीप इनसाइट विथ यू राइट नाउ बिकॉज यू आर केपेबल। सपोज हम लोग टॉप डाउन मेथड से रेवेन्यू फोरकास्ट कर रहे हैं। कौन सा मेथड से? टॉप डाउन मेथड ये बोलता है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी इज वन ऑफ द प्लेयर इन द इंडस्ट्री, तो इसका मार्केट शेयर इज ऑब्वियसली 100% और लेस देन 100%। लेस देन 100%। मैं CFA पढ़ा रहा हूँ, मेरा मार्केट शेयर इज 100% या लेस देन 100%? लेस देन 100। सबको मैं ही थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दैट केस इस कंपनी का एक सर्टेन मार्केट शेयर है और एट द सेम टाइम इंडस्ट्री का एक साइज है। सो द रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी इज गोइंग टू बी द मार्केट शेयर मल्टीप्लाइड बाय TAM मल्टीप्लाइड बाय टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ना इफ यू बिलीव दैट कंपनी का मार्केट शेयर कम होने वाला है, मार्केट शेयर गिरने वाला है किसी कारण से, कंपटीशन ज़्यादा आ गया, ओके, आई एम टीचिंग बैड, ठीक है, मैं ठीक से क्लासेस ले रहा नहीं हूँ, माई स्टूडेंट्स आर नॉट पासिंग, देयरफॉर सर का मार्केट शेयर कम होने वाला है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली माई ग्रोथ रेट विल बी ग्रेटर और लेस देन द इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट? लेस देन द इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट। और बहुत जन ये सिंपल चीज मिस कर जाते हैं इन देयर फोरकास्ट। व्हेन यू आस्क देम तो दे विल से दैट मेरे को लगता है मार्केट शेयर गिरेगा। व्हेन यू विल चेक यू विल फाइंड दैट वो लोग जो ग्रोथ रेट किए हैं वो ग्रोथ रेट इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट से ज़्यादा किए हैं, बिकॉज दूसरे मेथड से किए होंगे ना। दे माइट हैव डन बॉटम अप। यू फोरकास्टेड माई रेवेन्यू एज number of students who will do CFA with me multiplied by the revenue which I charge price. Number of students who will do CA through me into the price which I charge. Number of students who do FRM with me into the price which I charge. This is top down or bottom up? Bottom up. What is it? तुमने क्या किया? SSCI जो पढ़ाता है उसका P into Q करके फोरकास्ट किया। However, तुमको टॉप डाउन भी चेक करना चाहिए था कि क्या वो कंसिस्टेंट है क्या, एंड यू फाइंड इट इज नॉट कंसिस्टेंट बिकॉज तुम्हारे अनुसार SSCI का मार्केट शेयर कम होने वाला है। तो आपने कैसे फिर इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट से ज़्यादा ग्रोथ रेट अपने कंपनी का ला दिया? आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज इंटरनल कंसिस्टेंसी, एंड व्हेन दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड देन इन दैट केस देयर इज नो प्रेजेंटेशन, यू आर गॉन बिकॉज द इंटायर रिपोर्ट फॉल्स अपार्ट, ठीक है। तो इंग्लिश लॉजिक, इंग्लिश मैंने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ नॉट द मैथ, द थियरी विल हेल्प, द अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प, ओके। तो खैर आई वॉज टेलिंग यू दैट अपने जो LOS है, लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट 5 है, वो 5 में से LOS नंबर C इसके ऊपर है, प्लीज मार्क LOS C, LOS नंबर C। LOS इज लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। कि सिलेबस में क्या है वो तो पता होना चाहिए ना। ये कोई इंडियन एग्जामिनेशन नहीं चल रहा है जहाँ पे जो एग्जाम सेट किया उसको भी सिलेबस पता नहीं रहता और स्टूडेंट लोग को भी नहीं, और बाहर आके बोलते क्या टफ पेपर आया था इस बार। क्यों? बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, पहली बार मोदी सरकार आई थी। CFA में ये सब नहीं होता है। देयरफॉर लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स आर डिफाइंड, एवरीथिंग विल कम एज पर द सिलेबस, ठीक है। उसके बाद ये COGS और SGA, ये है LOSD। LOSD इज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, मैंने कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी लिखा? मैंने कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब फाइनेंशियल टच नहीं किया, इंटरेस्ट पे नहीं गया, ऑपरेशंस का बात किया, COGS SGA का। एंड
वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का भी LOS LOSD में ही है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, पर उसका डिस्कशन में अभी डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा डाइवर्जन हो जाएगा, इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। तो बिकॉज मैं एक बार सारा चीज़ कैसे बताऊँ, तो LOSC इज रेवेन्यू का, LOSD इज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, सपोज, फुल स्क्रीन प्लीज, एक प्लेटफॉर्म कंपनी है। व्हेन आई से प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, प्लीज नेम सम प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, प्लीज नेम सम प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। जो भी है सब तो प्लेटफॉर्म बिजनेस ही है। नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म बिजनेस है, स्पॉटिफाई प्लेटफॉर्म बिजनेस है, समझ गए। प्लेटफॉर्म बिजनेसेस का बात करें, स्विगी प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जोमैटो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है। ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस वाली कंपनीज है ना, इनमें से अगर एक कंपनी का बिजनेस मॉडल इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, विच मॉडल, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जैसे हम लोग का SSCI का सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है। आप लोगों ने CFA लेवल 1 पे रजिस्टर किया एंड यू हैव पेड मी से 35, 38 व्हाटएवर, ठीक है। तो बट सपोज आई चेंज माय बिजनेस मॉडल एंड आई से अब से 2026 से 1 जनवरी से SSCI का बिजनेस मॉडल मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा, where people will pay say 5,000 or 7,000 per month and they can enjoy all the products which are there on the platter, चाहे CA हो, CFA हो, FRM हो, स्टॉक मार्केट हो, सब कुछ। Are you understanding? सब्सक्रिप्शन मॉडल। और एक मॉडल हो गया नहीं सब्सक्रिप्शन नहीं, डिस्क्रीट मॉडल, जो कि प्रोडक्ट वाइज बाई करे तो पैसा दे रहे हैं, मेरे को ये चाहिए ये बाई कर रहे हैं। Are you understanding? तो इन दैट केस ये जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का कौन सा मॉडल है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है। जनरली सब्सक्रिप्शन मॉडल में देयर इज अ ग्रेटर रिटेंशन ऑफ द कस्टमर। अनसब्सक्राइब ना नॉर्मली करता नहीं है, ओके या तो याद नहीं आता बिकॉज इतना सारा सब्सक्राइब कर लिया ना। मैं मुफ्त का सब्सक्राइब नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लिए, मैं पेड सब्सक्राइब वाला बात कर रहा हूँ। तो इतना चीज़ को सपोज मैं कैन सब्सक्राइब कर लिया था उस दिन, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड सब्सक्राइब्ड है मेरा, 80 सब्सक्राइब्ड है, तो किसको तो याद रहे क्या जा रहा है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मतलब व्हाट इज दैट प्राइस ऑफ द सब्सक्रिप्शन कंपेयर टू द इनकम ऑफ द पर्सन। तो जिन लोग का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है 11-12 में पढ़े होंगे कि व्हेन योर एक्सपेंडिचर शेयर ऑफ अ प्रोडक्ट इज वेरी लो एज कंपेयर टू योर टोटल, तो इन दैट केस यू हार्डली केयर अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब इवन द प्राइस गोज अप यू हार्डली केयर, इट डजंट इफेक्ट। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल में रिटेंशन लेवल ज़्यादा होते हैं, जबकि फ्रेश परचेजेस में देयर इज ऑलवेज अ डेंजर। क्या पता जो लेवल 1 लिया था लेवल 2 ले आ गया, क्या पता वो अपने फ्रेंड्स को बोले क्या L1 लेने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब फोरकास्ट करते हैं रेवेन्यू तो वो सब काम आता है द मॉडल। ये जो मॉडल बोल रहा था, दिस इज बिजनेस मॉडल। व्हाट इज दिस? बिजनेस मॉडल। सर क्या चीज़ का धंधा है, इस धंधे में आप क्या सेल करते हैं सर, कौन आपका टारगेट कस्टमर्स है। जो DOM कंपनी थी, डॉम डेवलपमेंट, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट मैं इतना तो मोटिवेशन दे ही दूंगा, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी गुड मोटिवेटर, बट एटलीस्ट इतना मोटिवेशन दे दूंगा दैट यू विल फील लाइक गोइंग थ्रू द रिपोर्ट ऑफ डॉम धीरे धीरे। आई एम नॉट सेइंग आज ही शाम को, बट एटलीस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month, 1.5 month, आई एम रियली वांटिंग दैट तुम ये बोले कि सर वो जो DOM डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट था ना, जो रिसर्च रिपोर्ट था, वो मोटा मोटी मेरे कंट्रोल में है। आई एम एबल टू स्पीक आउट डॉम एज अ स्टोरी, ठीक है। जैसे किसी मूवी का स्टोरी बोलते हैं ना, हमने डॉम का स्टोरी बोल पा रहे किसी को भी, ये कंपनी क्या करता है क्या नहीं करता। तो बिजनेस मॉडल मतलब व्हाट डू यू सेल, whom do you sell, at what price do you sell, how do you reach out to that person, and who are your vendors and suppliers. That's business model. क्या बेचते हो, किसको बेचते हो। तो डॉम जो है ना वो जनरली प्रीमियम हाउसेस बेचता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं बेचता है। डॉम इज इनटू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन पोलैंड, ठीक है। एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में मास हाउसिंग नहीं, प्रीमियम सेगमेंट। विच सेगमेंट? प्रीमियम सेगमेंट। जनरली who are more price conscious, the premium segment or the mass segment? Mass segment. When I say price conscious, you did not understand the deeper meaning. I meant to say that suppose सीमेंट का दाम बढ़ गया, suppose लेबर का दाम बढ़ गया, suppose रेगुलेटरी प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया। जैसे इंडिया में रेरा रियल एस्टेट का एक एक्ट आया था, रेरा 2016-17 में, और वो एकदम रियल एस्टेट कंपनीज पे कंप्लायंस का बर्डन को बढ़ा दिया था। ये सब कॉस्ट बढ़ गया, तो अब क्या होगा, कॉस्ट बढ़ गया तो किसी का भी मन क्या करेगा, अगर कॉस्ट बढ़ गया तो कास्ट कस्टमर से प्राइस ज़्यादा चार्ज करे। तुम सोचो प्लीज़, तुम एक बिजनेस में है,
तो कुछ बना के बेचता है, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर सब बढ़ गया है, तो अगर तुमने प्राइस को नहीं इंक्रीज किया तब तो तुम्हारा मार्जिन स्क्वीज हो जाएगा, मार्जिन इज ओके, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो तुम्हारा मन क्या करेगा, मन करेगा कि काश मैं जितना मेरा कॉस्ट बढ़ा है उतना से ही प्राइस को बढ़ा दूं, करेक्ट है। बट देन यू आर अफ्रेड, व्हाई यू आर अफ्रेड, बिकॉज क्या गिर जाएगा, डिमांड। एयरलाइन कंपनीज लोग, अभी का बात अलग है, बट एयरलाइन कंपनीज लोग काफी बार इतने स्टिफ कंपटीशन में होते थे, दे वर नॉट एबल टू रेज द प्राइसेस ऑफ एयर टिकट्स, even the oil price was going from $70 to $90 to $110, $130, but air ticket का prices could not be raised. And if that is the case, उस इंडस्ट्री में देखा जाए तो इन्फ्लेशन इज गोइंग टू हर्ट दैट इंडस्ट्री, क्योंकि इन्फ्लेशन होने से मार्जिन विल गेट व्हाट, स्क्वीज्ड। बट कोई भी इंडस्ट्री जिसमें प्लेयर्स लोग का इतना दम है कि वो लोग दाम को बढ़ा सके, अगर कॉस्ट बढ़ गया तो, और इसका मतलब क्या होता है, डबल बदमाशी होता है इसमें, कॉस्ट बढ़ गया तो दाम बढ़ा देते हैं एंड वी आर एबल टू जस्टिफाई, और फिर कॉस्ट गिर गया तो दाम कम नहीं करते। यू कैन अंडरस्टैंड, कॉस्ट बढ़ने के बहाने से दाम को बढ़ा देते हैं, पर कॉस्ट गिर गया तो दाम कम नहीं करते हैं। नाउ व्हेन यू लिसन टू दिस, डेवलप योर, प्लीज इवॉल्व नाउ। अभी तक यू यूज्ड टू लिसन टू दिस एज अ कंज्यूमर एंड एज अ सोसाइटी, कितना खराब कंपनी है यार, देख कितना बदमाशी करता है। नाउ यू लिसन टू इट एज अ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, इतना बढ़िया कंपनी, इसी का तो शेयर बाई करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? When your perspective got to change, the way, the lens with which you look at companies, rather than fair principles and all that. What is fair? Nothing is fair. You instead think about कि मैं जो पैसा लगाऊंगा वो किन कंपनीज में पैसा लगाना चाहूंगा, those are able to increase their prices, ठीक है तो, and then retain that prices. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड के बाद जब ये सब हुआ था, तो उस केस में कोविड के बाद जब इन्फ्लेशन अचानक शूट अप किया था 21-22 में, पूरे एफएमसीजी इंडस्ट्री में इंडिया में वी हैड श्रिंकफ्लेशन, SHRINKFLATION, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन मतलब दाम बढ़ा नहीं पा रहे तो पैकेट का साइज छोटा कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या बाइंग बिस्किट का पैकेट तो उसमें एक बिस्किट कम है या उसमें क्रीम कम लगा रहे हैं, श्रिंकफ्लेशन, एवरीबडी डिड दैट, ठीक है। आई नो सो क्लोजली बिकॉज माई रिलेटिव्स आर देयर, द हल्दीराम्स, दे आल्सो डिड दिस, so I know more closely. So that's called shrinkflation. So whatever it is, मतलब we are discussing XYZ other areas. Why? Because the purpose is to discuss about this industry, that industry, this industry, so that your 360-degree exposure increases. ठीक है। तो बिजनेस मॉडल, मैं भी लास्ट 10 मिनट से बिजनेस मॉडल का आइडिया देना चाह रहा था। बिजनेस मॉडल मतलब धंधा क्या करते हो, क्या बेचते हो, किसको बेचते हो, कैसे बेचते हो, किस दाम पे बेचते हो, उसको रीच आउट कैसे करते हो। व्हाट डिड टेस्ला डू? Tesla saw that automobile industry is the worst industry to be in there. Automobile industry is a very very capital intensive industry. बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह सेटअप कर लो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए कितना लार्ज स्केल होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सारे के सारे एजेंट्स बीच में होंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग हैं, डीलर्स लोग हैं, उन लोगों को कमीशन दो, जो गाड़ी तुम खरीदता है उसका कमीशन दो डीलर्स के पास जाता है, वगैरह वगैरह। फिर टैक्सेस है, ये है वो है। अल्टीमेटली द मार्जिन आर अराउंड 8-9%। 8-9% मतलब 100 रुपया का गाड़ी बेच रहा है तो 9 रुपया कमा रहा है, 91 तो गया। तो वेयर इज देयर एनीथिंग इन द बिजनेस? नाउ व्हेन इलॉन मस्क स्टार्टेड दिस बिजनेस टेस्ला, तो इन दैट केस ही थॉट अबाउट इट कि यार ये कैसे करेंगे। तो इन दैट केस ही डिसाइडेड हम लोग बीच वाले लोगों को रखेंगे ही नहीं, हम लोग बीच वाले लोगों को रखेंगे ही नहीं, सीधा डायरेक्ट टू कस्टमर पहुंचेंगे। तो कस्टमर अपने बारे में जाने या कैसे, हम हैं ना, बोले ऐसा ट्वीट करेंगे ठीक है कि लोग बस मेरे बारे में बात करेगा। तो ही बिकेम द एडवर्टाइजमेंट दैट आई विल एडवर्टाइज इन दिस मैनर, देयरबाय प्रिवेंटिंग ऑल दैट 30-35-40% वो जो डीलर लोग कमीशन खा जाते हैं उसको उड़ा दिया, ठीक है। तो दैट इज अ न्यू बिजनेस मॉडल। It showed to the likes of GM and Ford that automobile business में कैसे आप disruption ला सकते हो, apart from other things that were done. Understood? तो business model आप कैसे reach करते हो customer के पास। Anybody who can do D2C, direct to consumer, is obviously saving margin। बीच में जो भी बीच में आता उन सबको हटा दिया और directly reach कर पा रहे। We would like to study that when we look at a company, कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, how is it different from other players, ठीक है। देयर इज अ हुंडई विच इज अ कॉस्ट लीडर,
हुंडई ये मानता है कि मेरे गाड़ी का दाम ज़्यादा नहीं होगा, मारुति गाड़ी का दाम ज़्यादा नहीं होगा, बट वी विल कंट्रोल कॉस्ट, वी विल कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट हमारा सबसे कम रहेगा, वी आर अ कॉस्ट लीडर. On the other hand, there are product differentiators who will charge a higher price promising differential feature. So what is the strategy of the company? That's a part of business model. So business model में we study all this. That is LOS number B. LOS number B. तो LOS number A you understood. LOS number A is research report का components. मैंने components बताया नहीं अभी तक. मेरा habit है, good or bad whatever, कि मैं जब तक पढ़ाते हुए रास्ता नहीं बताता हूँ ना कि व्हाट इज देयर इन द चैप्टर, मेरे से कंफर्ट लेवल आता नहीं है. होता है ना कि आई वांट यू ऑल टू बी इन माय सेम पोजीशन. ओके सर क्या कराने वाले हैं, क्या काश हम लोग को पहले से पूरा रास्ता पता चल जाए चैप्टर का. तो अभी बता रहे LOS A में वो जो रिसर्च रिपोर्ट डॉम का था उसका क्या क्या पोर्शंस होगा, स्ट्रक्चर होगा. उसके बाद बिजनेस मॉडल का स्टडी, किसका स्टडी, बिजनेस मॉडल का, डॉम का बिजनेस मॉडल. उसके बाद रेवेन्यू के अंदर डिग करेंगे, किसके अंदर, रेवेन्यू. उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल के अंदर डिग करेंगे, दैट इज LOS नंबर D. और फिर लास्ट LOS नंबर E. सर बैलेंस शीट में ये पैसा उठाता कहाँ से और पैसा लगाता कहाँ पे, सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड. डज इट रेज मनी वाया डेट और डज इट रेज मनी वाया इक्विटी, विच इज सेफर. डज इट रेज मनी वाया डेट और डज इट रेज मनी वाया इक्विटी, विच इज सेफर. हो सकता है मैंने अब्रप्टली पूछ लिया, लेट मी टेक माय टाइम. अदानी का जब 2022 में कांड हुआ, when Hindenburg came out with the Adani report, the allegation of Hindenburg was that अदानी का डेट इक्विटी रेशियो इतना हाई है, अराउंड 40-50 टाइम्स. तो इतना हाईली लेवरेज्ड कंपनी है अदानी, उसके बाद भी इसका वैल्यूएशन इतना हाई कैसे है. आई मीन टू से डेट बहुत ज़्यादा लेना इज रिस्की, यू कैन बिकम बैंकरप्ट. आपने डेट लेके धंधा किया, अगर धंधा नहीं चला तो कहाँ से लौटाएंगे. ऑल द massacres which happen in the world, most of them are because of what? Leverage. Because of leverage. Therefore, the first thing which all of us heard when COVID started at the nation stage was that Reliance becoming net debt free. Reliance becoming net debt free. No matter which class you were. बहुत ज़्यादा बात, और उसमें तो बात ही बात का था ना, because we were all sitting at home. तो बहुत जोर से बात हो रहा था. रिलायंस डेट फ्री बन गया था उस समय, ओके, बाय रिपेइंग द डेट. एनी कंपनी विच डज नॉट हैव डेट या डेट कमती रिलाई करता है, इसका मतलब इट हैज अ कैपेसिटी टू रेज डेट इन केस ग्रोथ हैपन्स. मैंने अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया और मेरे को एक्सपैंड करना है और मेरे बैलेंस शीट में डेट नहीं है, तो आई एम कीपिंग, होता ना कि सर आप कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हो कि आप जब चाहोगे डेट ले सकते हो. वी वुड लाइक टू सी कंपनी कैसे पैसा रेज कर रहा है और कंपनी पैसा कहाँ लगा रहा है. इज द कंपनी पेइंग अ लॉट ऑफ डिविडेंड, इज द कंपनी इन्वेस्टिंग इन न्यू प्रोजेक्ट्स, इज द कंपनी डूइंग मर्जर्स एंड एक्विजिशन. आई सेड 3 थिंग्स. इज द कंपनी पेइंग अ लॉट ऑफ डिविडेंड, इज द कंपनी डूइंग न्यू प्रोजेक्ट्स, इज द कंपनी डूइंग मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इज द कंपनी गोइंग फॉर बायबैक. व्हाट? Buyback of shares. There are 2 ways of returning money to shareholders. One is dividend, the other is buyback. One is dividend, the other is buyback. Think and say. Question पूछ रहा हूँ. Think and say. Dividend versus buyback, दोनों में से analogy wise, which is equivalent to a live-in relation versus marriage. Dividend versus buyback. Very odd question, but you got to apply your brain. कौन सा हो गया लिव इन रिलेशन और कौन सा हो गया मैरिज? डिविडेंड इज अ मैरिज, बायबैक इज अ लिव इन. मन हुआ तो बायबैक करेंगे, मन हुआ तो बायबैक नहीं करेंगे. पर अगर डिविडेंड तुमने दे दिया ना, तो अब तेरा मन का बात नहीं है, बिकॉज अगर तुमने अब डिविडेंड नहीं दिया तो तुम्हारा तन उतार देगा ये लोग. ओके, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, द पोएट्री वाज कमिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड डू वी हैव अ चैप्टर ऑन दैट? यस वी हैव. मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं नॉलेज देंगे. ठीक है. तो व्हाट इज द कंपनी डूइंग विद द मनी, पैसा कहाँ जा रहा है और पैसा कहाँ से आ रहा है. ठीक है, ऑल दैट हैज टू बी सीन. तो ये 5 LOS है. कैन वी रिमेंबर द LOS? व्हाट्स द फर्स्ट LOS? रिसर्च रिपोर्ट. व्हाट इज द सेकेंड LOS? बिजनेस मॉडल, धंधा क्या करते हैं. व्हाट इज द थर्ड LOS? रेवेन्यू, टॉप लाइन रेवेन्यू. फोर्थ, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल. ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड, अरे कॉस्ट स्ट्रक्चर स्टडी करें, कॉस्ट स्ट्रक्चर. एंड लास्ट LOS
कैपिटल रेजिंग एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रेजिंग एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये 5 LOS चैप्टर में है। दीज आर द 5 LOS ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो जिससे कि यू ऑल ऑल्सो नो, जैसे अपने जब दोज हु आर डूइंग एथिक्स ऑल्सो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, यू ऑल न्यू बिफोर एंड ओके 7 स्टैंडर्ड से कवर करना है, तो एटलीस्ट आपको ही पता चले गाड़ी कहाँ पहुंची है, कब नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है। ठीक है, तो इन दैट केस दिस इज द लेआउट ऑफ दिस चैप्टर। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, जो इसके बाद चैप्टर है लर्निंग मॉड्यूल नंबर 7, दैट इज कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग। क्या है? कंपनी एनालिसिस। उसमें एक LOS है, ओके, फोरकास्ट रेवेन्यू, बिकॉज तुमने तो रेवेन्यू को एनालाइज कर लिया ना, मतलब चलो फोरकास्ट रेवेन्यू। नेक्स्ट LOS क्या होगा? फोरकास्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट LOS क्या होगा? फोरकास्ट कैपिटल रेजिंग एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। समझ गए? माने जो इसका LOS है वही LOS उस चैप्टर का है। इसमें अपने स्टडी कर रहे हैं पास्ट का ड्राइवर्स एंड ऑल दैट, और उसमें अपने अल्टीमेटली क्या करेंगे? फोरकास्ट। ठीक है, तो खासकर इंडियन स्टूडेंट्स को ना, यहाँ आई नीड टू से दिस, बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग चैप्टर को बोल पाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही तो सिखाया गया है। मम्मी सुन रही है? हाँ बताओ क्या था, फिर इसके बाद नहीं ये लाइन मिस कर गया तुमने। चैप्टर को बोल पाना इज सच एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वेदर वी नो इट और नॉट, बट दिस विल हर्ट। आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ यू एंड आई विल कीप ऑन टेलिंग दिस। अगर तुम जब एग्जाम अप्रोच करेगा, 2 महीने बाद एग्जाम है, और तुमको अचानक से लगा ना इस चैप्टर में क्या था यार, कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है, तुमको ऐसे लगा, बहुत बढ़िया है, तुम क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन तुमसे हो रहा है तो क्या बोले, क्वेश्चन सारा हो रहा है सब, पर याद नहीं आ रहा है, मतलब बोलना चाह रहे मम्मी को नहीं बोल पाएंगे, तो कोई मम्मी को नहीं बोलना है तुमको। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पीक आउट द चैप्टर, कि चैप्टर में क्या पार्ट था, वो टीचर का रिक्वायरमेंट है। मेरे को ध्यान रखना, मेरे को भी ध्यान रहता नहीं है। देयरफॉर फॉर एवरी चैप्टर आई हैव टू स्टडी इवन नाउ, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर व्हाट द चैप्टर वाज एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को रिसर्च क्या होता है वो पता है, पर ये ऑथर ने क्या क्या बोला और कैसे पता चलेगा? अंडरस्टूड? सो ये अपने को पता चल गया, देयर आर 5 LOS एंड दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। करेक्ट है? लेट्स राइट डाउन। चैप्टर लेआउट। So LOS A is research report, LOS B is business model, LOS C is revenue drivers, LOS D is operating profitability, and WC drivers, working capital drivers, LOS E is capital sources and uses, capital sources and uses, पैसा रेज कहाँ से करता है, पैसा लगाता कहाँ पे, कैपिटल सोर्सेज एंड यूजेस। ठीक है, नंबर ए रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट, तो रिसर्च रिपोर्ट में मैंने आई वोंट लाइक टू डू इट पूरा एकेडमिकली, देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू इंश्योर दैट कास्ट नेचुरली जाए। एक रिपोर्ट है, उसमें एक कंपनी के बारे में पूरा लिखा हुआ रहेगा। तो एक तो राइटअप रहेगा बहुत सारा, इंडस्ट्री के बारे में लिखा हुआ रहेगा, ये किस इंडस्ट्री बिलोंग करता है उसका राइटअप रहेगा। उसके बेसिस पे से 5+3 है, क्या बोला मैंने? 5+3, 5 क्या है? लास्ट 5 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है। लास्ट 5 ईयर्स का PL अकाउंट, लास्ट 5 ईयर्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट, लास्ट 5 ईयर्स का बैलेंस शीट।
लास्ट 5 ईयर्स का पीएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। पीएल अकाउंट का फीलिंग आ रहा है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। कैश फ्लो का फीलिंग आ रहा है सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ। क्या बोला? सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ। ऑपरेशन से क्या पैसा जनरेट हुआ? एक्चुअली जब भी सीएफओ सोचो इट इज सेम एज पीएल, केवल इट इज लाइक कैश रेवेन्यू माइनस कैश एक्सपेंस, ऐसा सोच लो एक बार। सेम एज पीएल बट नॉट ऑन एक्रूवल बेसिस बट ऑन कैश बेसिस। सीएफओ। सीएफआई इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा गया, प्लांट मशीनरी ये सब में, और सीएफएफ डेट से इक्विटी से कितना पैसा उठाए। सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ, अ पर्सन हु डजंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ एक सेकेंड, 1 सेकेंड। सो देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द लाइव बैच जिनका बीच बीच में ऑडियो या वीडियो इश्यू होता रहता है, दे राइट इट, बट जब तक मैं नहीं पाता हूँ कि सबका हो रहा है, आई डू नॉट स्टॉप, बिकॉज वो होगा ही। इफ देर आर सपोज अभी 1230 स्टूडेंट्स डूइंग द क्लास राइट नाउ, वो 1230 स्टूडेंट्स में किसी के ना किसी का लोकल इशू की वजह से ऑडियो और वीडियो प्रॉब्लम होगा ही बीच में, फॉर विच वी कैन नॉट स्टॉप और वी कैन नॉट एड्रेस। ठीक है, तो इसके लिए व्हेन आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज यू शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड मैच्योर्ड दैट यस सर दिस इज द वे इन विच क्लास गॉट टू बी टेकन। यस, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके अलावा बैलेंस शीट, उसके अलावा बैलेंस शीट। मैंने बोला 5 + 3 यानी 5 एक्चुअल और 3 एस्टिमेटेड, फोरकास्ट। 3 क्या हो गया? फोरकास्ट। तो एक्चुअल इस चैप्टर में एनालाइज हुआ, पास्ट एंड प्रेजेंट, कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपने इंडस्ट्री का समझा, इंडस्ट्री का। लेट मी आस्क यू, क्या तुम्हारा फ्यूचर तुम क्या अर्न करेगा फ्यूचर में, क्या मैं तुम्हारा फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए मेरे को क्या तुम्हारा पास्ट स्टडी करना चाहिए? डेफिनेटली देखना चाहिए, तुम्हारा पास्ट स्टडी करना चाहिए मेरे को इन ऑर्डर टू जज तुम क्या करने वाले फ्यूचर में। पर गिवन दैट तुम सीएफए और फाइनेंस कर रहे हैं, तो क्या मेरे को तुम्हारा फ्यूचर फोरकास्ट करते समय ये देखना चाहिए कि सर सीएफए का फ्यूचर कैसा है और फाइनेंस का फ्यूचर कैसा है? डेफिनेटली। और एक बार मैंने तुमको स्टडी कर लिया और सीएफए का फ्यूचर स्टडी कर लिया, ये भी देख लिया तुम क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है, और वो स्ट्रैटेजी जो तुम अपनाता है, सपोज एक स्टूडेंट है वो जोर का रटता है, चैंपियन है रटने में, ही इज अ चैंपियन ऑफ मगिंग अप, ठीक है, और वो सीएफए प्रोग्राम में है, तो इन दैट केस तो ये फिट नहीं कर रहा है ना उससे, बिकॉज वो रटने वाला चीज़ तो फाइनेंस इंडस्ट्री में कोई काम का नहीं है, खासकर अभी तो एआई में। तो इन दैट केस वो स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क। कोई स्टूडेंट है, पता चला ओके सर ये स्टूडेंट को हमेशा ही नेचुरली इंटरेस्टेड रहता है इकोनॉमी का, प्रैक्टिकल लाइफ का, ठीक है, रिसर्च करता रहता है, ऑफकोर्स डेडिकेटेड, डिसिप्लिन तो हो ही। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच एक्चुअली वर्क इन द इंडस्ट्री, इसके हेल्प से आई विल फोरकास्ट, आई विल व्हाट फोरकास्ट, ठीक है ना। तो एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है फ्रंट मैटर। क्या आता है? फ्रंट मैटर। फ्रंट मैटर मतलब जैसे ही अपने रिसर्च रिपोर्ट खोलेंगे ना, वैसे ही आपको दिखना चाहिए किस कंपनी के ऊपर है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एक्सचेंज कौन सा है जिसपे वो कोटेड है, बीएससी में कोटेड है कि एनएससी में कोटेड है या एनवाईएससी में कोटेड है। एनवाईएससी का फुल फॉर्म न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये जो कंपनी था डॉम डेवलपमेंट, इन केस यू रिमेंबर, ये कौन से स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड था? वॉर्सो स्टॉक एक्सचेंज, WSE, ठीक है। तो अपना सीएफए का एग्जामिनेशंस आर नॉट एट ऑल जनरल नॉलेज एग्जाम, दे कैन नेवर आस्क यू एनीथिंग विच इज जनरल नॉलेज कि बता यूएस का स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, कभी भी जिंदगी में दुनिया हिल जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो कभी जनरल नॉलेज पेपर एकदम ही नहीं है। एनीवेज, तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का एक्सचेंज कौन सा है, कंपनी का टिकर सिंबल क्या है, कंपनी का टिकर सिंबल क्या है। तो हर कंपनी का एक टिकर सिंबल होता है, वो सिंबल ये लोग देगा, ठीक है। तो टिकर सिंबल रिलायंस इंडस्ट्री का में भी RIL, SBI का में भी SBIN, ठीक है, दैट वे। PNB का, पंजाब नेशनल बैंक का PNB, दैट वे। व्हाट इज द टिकर सिंबल? इनफैक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, वरना बता दूं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अवेयरनेस, हर एक कंपनी का ग्लोबली अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है विच इज कॉल्ड ISIN नंबर। व्हाट नंबर? ISIN, इंटरनेशनल पर स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं है, ISIN,
हर कंपनी का होता है, 9 डिजिट नंबर या 12 डिजिट नंबर होता है, आई फॉरगेट, ठीक है, बट अदरवाइज तो कंपनी का टिकर सिंबल, एक्सचेंज वगैरह डेफिनेटली रहेगा फ्रंट पे। जैसे तुम रिपोर्ट खोलेगा तो रहना चाहिए ना सामने किसके बारे में ये रिपोर्ट। उसके अलावा रहेगा रिकमेंडेशन, क्या रहेगा, रिकमेंडेशन कि सर अल्टीमेटली बाई बोल रहा है कि सेल या होल्ड, एनालिस्ट बोल रहा क्या है, ये तुम जानना चाहेगा पहले इस कंपनी के बारे में। वहीं पे रहेगा टारगेट प्राइस, करंट प्राइस, टारगेट प्राइस और करंट प्राइस, ठीक है। तो टारगेट प्राइस ज़्यादा रहा, करंट प्राइस है तो बाई रिकमेंडेशन होगा, टारगेट प्राइस कम रहा तो क्या होगा, सेल रिकमेंडेशन। उसके बाद रहेगा जो लोग एथिक्स कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नंबर 1B, स्टैंडर्ड नंबर 1B जो लोग एथिक्स कर रहे हैं वो क्या था, इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वहाँ रहेगा लीगल डिस्क्लोजर्स, लीगल डिस्क्लोजर्स। लीगल डिस्क्लोजर्स में आपको लिखना पड़ेगा ये रिपोर्ट आप जो लिख रहे हैं ना, आपका टीम लिख रहे हैं, डू यू होल्ड द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, डज योर फैमिली होल्ड द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, डज योर एसोसिएट होल्ड द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, डज योर क्लाइंट होल्ड द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, डू यू और योर एसोसिएट्स और योर फैमिली work in this company, are in employment or director of this company, do you have any other supply contracts or whatever with this company, is there any conflict of interest present in this company with you, so that people who are reading the report can understand your conflict of interest, people can understand कि यार ऐसा है तो उस केस में थोड़ा सा इसको शक के साथ रीड करते हैं, तो that has to be disclosed, legal requirement है। सर सेबी का ये रिक्वायरमेंट है क्या, यस है। निमिष आपका बहुत देर से प्रॉब्लम हो रहा है, आई विल एडवाइज निमिष कि आप क्लास मत करो अभी, यू डू द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास बिकॉज बाकी लोग का स्मूथ चल रहा है, ठीक है। सिंस यू आर कीपिंग ऑन राइटिंग देयरफॉर मेरे को आपका नाम लेके बोलना पड़ा, व्हाई यू अननेसेसरी गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, लीव द क्लास, डू इट लेटर ऑन, ठीक है। या सो 3 चीज़ मैंने बोला रहता है फ्रंट मैटर में, 3 चीज़। नंबर 1 कंपनी का नाम, टिकर वगैरह। नंबर 2 रिकमेंडेशन, नंबर 2 recommendation, target price and current price. Number 3 legal disclosures, legal disclosures। ये 3 चीज फ्रंट मैटर में रहता है, these 3 are given in the front matter, ठीक है। तो आफ्टर द फ्रंट मैटर जो सेकेंड पोर्शन है, टोटल 8 पोर्शन है, कितना पोर्शन है, देयर आर 8 पोर्शंस इन द रिसर्च रिपोर्ट, आई हैव टोल्ड यू द फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। द सेकेंड पोर्शन इन द रिसर्च रिपोर्ट इज रिकमेंडेशन। तो यू विल थिंक दैट रिकमेंडेशन तो ऊपर में था, यहाँ फिर से रिकमेंडेशन। इस बार रिकमेंडेशन में वो लोग देना जा रहा है रैशनल फॉर रिकमेंडेशन, क्या, रैशनल फॉर रिकमेंडेशन। इन अ वे सर थोड़ा समराइज्ड वे में काश बोल देना किस तरह से किया है, क्यों बोल रहे हैं। हम इतना रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे 22 पेज का, कोई जन बोल रहा है हम रिपोर्ट ही नहीं देखेंगे, मेरे को केवल ऊपर ही बता दे भाई ये किस सेल है, कौन सा कंपनी है, इज इट ओके। फिर कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे को जरा सा बता देना क्यों बाई है, क्यों सेल है, जरा सा बता दे, हम डिटेल में रीड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे लोग होंगे या नहीं होंगे दुनिया में, होंगे जिनको मोटा मोटी चाहिए, क्या समराइज्ड वे बता दे, दैट इज रैशनल फॉर रिकमेंडेशन। उसको वो लोग रैशनल नहीं, वो लोग रिकमेंडेशन बोलते हैं। थर्ड पार्ट होगा कंपनी डिस्क्रिप्शन, कंपनी का खोल के डिस्कशन पूरा कंपनी का। फोर्थ पार्ट होगा इंडस्ट्री का डिस्कशन, किसका, इंडस्ट्री का डिस्कशन। एंड इंडस्ट्री के डिस्कशन में एक और चीज, कंपनी के स्ट्रैटेजी का इवैल्यूएशन, कि जब मैं सीएफए का डिस्कशन कर रहा हूं फाइनेंस का, तो तुम जो लर्न करता है ना, तो तुम सीएफए में कितना सूट कर पाएगा, माने इंडस्ट्री का डिस्कशन एंड कंपनी का स्ट्रैटेजी उस पर वर्क कर पाएगा क्या। कितना पार्ट हो गया, 4 हुआ क्या। फर्स्ट पार्ट क्या था, फ्रंट मैटर। फर्स्ट पार्ट क्या, फ्रंट मैटर। फ्रंट मैटर के अंदर क्या था, प्लीज मन में सोच लो, मोटा मोटी याद आ रहा है। फ्रंट मैटर में देखते ही क्या चाहिए तुमको, किसके ऊपर रिपोर्ट है, क्या बोल रहा है बाई या सेल, क्या टारगेट प्राइस है, और कुछ लीगल प्रॉब्लम है क्या, इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी। यू कांट फॉरगेट, बिकॉज ऐसे भी तो आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है, लिख के आना होता है इंडियन एग्जाम तो डिफरेंट टेंशन है। मल्टीपल चॉइस में आएगा कैसे नहीं समझेंगे, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल सी इट, एकदम मुफ्त का मल्टीपल चॉइस होने वाले। फ्रंट मैटर के बाद कोई पर्सन ये जानना चाहेगा कि यार मोटा मोटी लॉजिक क्या है, व्हाट वाज दैट, रिकमेंडेशन, व्हाट वाज दैट, रिकमेंडेशन, ठीक है। तो एक मूवी है बाय द नेम ऑफ मार्जिन कॉल, इज द मूवी बाय द नेम ऑफ मार्जिन कॉल, एनीबॉडी हैज सीन दैट मूवी, मार्जिन कॉल। ये जो मूवी है, दिस इज अबाउट द सब प्राइम क्राइसिस 2008 में
जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ठीक है। एंड उस मूवी में दिखाता है कि एक पर्टिकुलर जो जूनियर स्टाफ है जो काम कर रहा था इन द फिक्स्ड इनकम, मैं किसी कारण से बोल रहा हूँ, वो जो काम कर रहा था जूनियर स्टाफ, वो कुछ मॉडल निकाला और उससे पता लगाया कि अपने तो डूबने वाले हैं, मतलब एक बड़ा कंपनी लाइक मॉर्गन स्टैनली इज गोइंग टू कोलैप्स। दिस इज अ वेरी बिग मैटर बिकॉज यू नो दीज कंपनीज, आई मीन टू से नाउ कंपनीज आर हैविंग अ जीडीपी विच ग्रेटर देन जीडीपी ऑफ कंट्रीज ना। एनवीडिया का मार्केट कैप, चिप वाला कंपनी का मार्केट कैप हैज क्रॉस्ड $4.5 ट्रिलियन। एनवीडिया का मार्केट कैप हैज क्रॉस्ड $4.5 ट्रिलियन। इट इज ग्रेटर देन द जीडीपी ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज ग्रेटर देन द यूके का मार्केट कैपिटलाइजेशन। एनीवेज, तो वो मॉर्गन स्टैनली डूबने वाला है, तो उस केस पे रातों रात मीटिंग बुलाया गया। कोई यहाँ से फ्लाई करके आया, वहाँ से, तो जो हेड आया वो पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो वो चालू किया समझाना, सर ये जो एक्स है वाई के पास जाएगा तो जेड हो जाएगा, जेड वाई के पास जाएगा ए हो जाएगा। बोला स्टॉप, इंग्लिश प्लीज, इंग्लिश। समझा? यानी वो जो अपना था ना कौन, 3 इडियट्स, कहना क्या चाहते हो। तो इंग्लिश प्लीज का मतलब ये होता है ना कि नंबर्स जो है वो अपने जगह पे है, पर ज़्यादातर जब अपने स्टोरी से वैसे बात करते हैं ना तो समझ में आता है क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए रिकमेंडेशन के अंदर केवल नंबर थ्रो नहीं होगा, मार्जिन ये होने वाला है, ये होने वाला है वगैरह, देयर विल बी सम स्पीकिंग आउट। ओके, जैसे इन्होंने क्या बोला है सुनना प्लीज, बिकॉज अगर मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एक एक जगह, उसके कारण तुम्हारे लिए ईजी हो रहा है डाइजेस्ट करना। आर यू सीइंग व्हाट एम आई डूइंग? आई एम मेकिंग द मैटर इंटरनलाइज विद इन यू। इंटरनलाइज, नॉट मेमोराइज। There's a difference, and that requires staying in the topic, speaking right, left, connecting the dots. तो recommendation का लॉजिक में, डॉम का लॉजिक में बोला है कि जो डॉम है ना वो डोमिनेंट प्लेयर है। डोमिनेंट यानी कि उसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है पोलैंड में। पोलैंड में कोई 6 सिटीज़ है, मेरे को नाम याद नहीं है, वो 6 सिटीज़ में सबसे ज़्यादा रेसिडेंट्स लोग रहते हैं, और डॉम का प्रेजेंट इन 6 सिटीज़ में ही है। डॉम का बहुत बड़ा लैंड बैंक है। क्या बोला? लैंड बैंक। एनीबडी अवेयर ऑफ व्हाट अ लैंड बैंक इज? यस, क्या बोल रहे हो? नहीं, हाँ, क्या कौन सा लैंड? बहुत सारा लैंड खरीद के रखा हुआ उसके पास, बिकॉज डेवलपमेंट कंपनी को तो लैंड चाहिएगा ना रेजिडेंशियल बिल्डिंग फ्लैट बनाने के लिए, और लैंड ऐसे मिलता नहीं है। समझे क्या? देखा था सिंदूर में क्या हुआ था, ठीक है। तो लैंड का झमेला होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, कहाँ से एग्रीकल्चरल लैंड ये वो कहाँ से आएगा। तो अगर लैंड आपके पास है, इसका मतलब कैपेसिटी इज देयर। अगर डिमांड हुआ तो आप बिल्ड कर दोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लैंड एक्वायर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लैंड बैंक भरा हुआ है। 20,000 यूनिट्स का लैंड बैंक है उसके पास। इसका हाई प्रीमियम सेगमेंट को अपील करता है, बिकॉज ऑफ विच प्राइस पास कर पाते हैं कस्टमर को, प्राइस पास कर पाते हैं, प्राइस राइस पास कर पाते हैं कस्टमर को। अगर कॉस्ट बढ़ गया तो प्राइस को बढ़ा पाते हैं, ठीक है। डेट वर्चुअली नेग्लिजिबल है बैलेंस शीट में, डेट इज नॉट देयर इन द बैलेंस शीट एट ऑल, सो इट कैन लेवरेज। लिक्विडिटी पोजीशन बहुत साउंड है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो वो समराइज्ड वे में वो लॉजिक दिया होगा। कौन से सेक्शन में? रिकमेंडेशन। कौन सा सेक्शन? मेरे ख्याल से रिकमेंडेशन में 3 पार्ट आता है, सुन लेना। क्या? बिजनेस लॉजिक, फाइनेंशियल लॉजिक, वैल्यूएशन लॉजिक। क्या बोला? बिजनेस लॉजिक, फाइनेंशियल लॉजिक, वैल्यूएशन लॉजिक। बिजनेस लॉजिक मतलब धंधे का बात करना कि लैंड बैंक है सर, स्टार परफॉर्मर है, प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट करता है, बहुत ब्रांड है, प्रीमियम मार्केट सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, जैसे इंग्लिश धंधे का बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लॉजिक क्या हुआ? डेट इक्विटी रेशियो इज ओनली 0.1, मार्जिन आर वेरी हाई, जहां फाइनेंशियल टर्म्स का बात करें ना, फाइनेंशियल लॉजिक। वैल्यूएशन लॉजिक क्या हुआ? एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन, एसओटीपी वैल्यूएशन। कुछ वर्ड्स तुमने सुना है लास्ट क्लास। एसओटीपी वैल्यूएशन इज सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन। कौन सा? सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन तो सुना है ना तुमने लास्ट क्लास। किसका? अमेजॉन का। जैसे अपने आईटीसी का, आईटीसी में सिगरेट है, आईटीसी में होटल है, आईटीसी में एफएमसीजी है, आईटीसी में पेपर है,
If you add all of them, all the businesses, you get a valuation of ITC which is called sum of parts. पता नहीं ये T क्यों लगा दिए, ये लोग बोलते हैं sum of the parts. I don't feel like saying that, तो मैं sum of parts ही बोलता हूँ. It's called SOTP valuation. यानी कि valuation एक मेथड से करना चाहिए कि दो तीन मेथड से. कारण valuation is a throwing the darts exercise. You are actually projecting the future. Are you God? No. So since you are projecting the future, you can be wrong. Why don't you double confirm from the other method and take a weighted average and then say? In fact, अभी के दिन में globally कोई भी वैल्यूएशन का सर्टेन नंबर बोलता ही नहीं है. 280 स्टुपिडिटी है. 280 कोई बोलेगा तो एवरीबडी विल स्पीक अबाउट अ बेयर केस, बुल केस एंड मोस्ट लाइकली केस. बेयर केस में वर्स्ट टू वर्स्ट कंपनी का वैल्यूएशन 230, बेस्ट टू बेस्ट 430, मॉडरेट 310. लोग रेंज ऑफ वैल्यूएशन देते हैं. व्हाई? बिकॉज वी आर फोरकास्टिंग द फ्यूचर. ठीक है, तो तीन चीज आएगा रिकमेंडेशन में: बिजनेस का लॉजिक, फाइनेंशियल लॉजिक एंड व्हाट, वैल्यूएशन लॉजिक. फर्स्ट पार्ट का नाम क्या था? फ्रंट मैटर. सेकेंड पार्ट का नाम क्या था? रिकमेंडेशन. ठीक है. थर्ड पार्ट में कंपनी डिस्क्रिप्शन. क्या? कंपनी डिस्क्रिप्शन. कंपनी तुम्हारा एनालिसिस कर रहे हैं पास्ट का. फोर्थ पार्ट इज इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग. क्या बोला? इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग. इंडस्ट्री का स्टडी एंड तुम जो स्ट्रैटेजी लगाते हो ना, वो कितना फिट हो पाएगा इस इंडस्ट्री में. कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग, तुम्हारा औकात क्या है इस इंडस्ट्री में. इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग. 4 पार्ट्स हुआ. ये चारों पार्ट्स जनरली इंग्लिश है, ग्राफ्स है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, ओके, कलरफुल है, दैट वे है ये चारों पार्ट. पांचवा पार्ट इज एक्सेल. एज इन चालू हो जाएगा यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल. फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल. ओके, तो देयर विल बी अ मॉडल. अपने पास है क्या एनेक्चर? बिकॉज एक शक्ल ये लोग नहीं देखेंगे तो दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट. आई डोंट थिंक वी हैव इट. नहीं है. किसके? कहाँ पे बने? या गुड. सो दिस इज दैट पार्ट जो बोल रहा था, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल. तो बहुत छोटा फॉन्ट साइज है तो वैसे नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आपको ठीक से दिखाऊं तो इसके अंदर एक बीच में वर्टिकल लाइन ड्रॉन है ना, दिख रहा है? बीच में वर्टिकल लाइन सबको दिख रहा होगा. वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में 2019 ए माने एक्चुअल, 2020 ए, 2021 ए, 2022 ए, 2023 ए. तो 2019 से 23 का एक्चुअल फाइनेंशियल्स दिया हुआ, एक्चुअल. उसके बाद ये रिपोर्ट कब का था? किसी को डेट याद है क्या? बिकॉज आप लोग का याददाश्त बहुत स्ट्रांग है. रिपोर्ट का डेट याद है जब खोले थे? तो 31 जैन 25. 31 जैन 25 का था. 31 दिसंबर 24 कंप्लीट हो गए. पर क्या 31 दिसंबर 24 का एनुअल रिपोर्ट वगैरह एक महीने में जनरली अवेलेबल हो जाता होगा या नहीं होता होगा? नहीं होता है. नॉर्मली इट टेक्स 2 or 3 months पोस्ट दैट टू कंप्लीट द रिपोर्ट. तो 31 जैन को नहीं हुआ होगा, तो इन्होंने ये लिखा है 2024 ई इज व्हाट? एस्टिमेट. उसके बाद 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 उनके बगल में लिखा है एफ फॉर व्हाट? फोरकास्ट. 2024 को लिखा है ई एस्टिमेट, बिकॉज 2024 का जो 9 months था ना, कैलेंडर ईयर 9 months माने फर्स्ट क्वार्टर जैन टू मार्च, सेकेंड क्वार्टर अप्रैल मई जून, थर्ड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर. क्या सितंबर 2024 तक का इंफॉर्मेशन 31 जनवरी तक होगा? यस. लास्ट क्वार्टर का इंफॉर्मेशन केवल नहीं होगा, बिकॉज अभी भी 1 महीना बीता है ना. तुम समझो ठीक से.
जो पूरा 2024 था उसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स निकलता है कंपनीज का, तो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका, सेकेंड क्वार्टर का आ चुका, थर्ड क्वार्टर का आ चुका, केवल फोर्थ क्वार्टर का नहीं आया होगा। तो अगर तुमको 9 मंथ्स का क्लियर कट पता है एज कम्पेयर टू 12 मंथ्स, तो उसको तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे ना। तो क्या लिखा है उसको? एस्टिमेट। और बाकी सबको क्या लिखा है? फोरकास्ट, जो पूरा अंधाधुन है वो फोरकास्ट है। तो दिस इज द फाइनेंशियल मॉडल वेयर दे आर शोइंग द पीएल अकाउंट, दे आर शोइंग द बैलेंस शीट, दे आर शोइंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, दे आर शोइंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसमें एक एक आइटम जो फोरकास्ट किया है, रेवेन्यू, ओके, रेवेन्यू क्या होगा वो किया है विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू हैव डन इन द थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट, इनफैक्ट सेकेंड थर्ड सॉरी हाँ, in the third part and the fourth part. What was the third part? Company description. What was the fourth part? Industry overview and competitive positioning. उसके हेल्प से आप कर पाए हो, ठीक है। तो दिस इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल। व्हेन यू लिसन टू समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल, it is creating this model, it is about creating this model. And you know what is happening on the street? Many people can create this model, but this is comprised of garbage in, garbage out. मतलब फिगर्स का कोई सेंस ही नहीं है, सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया, वाओ, दूर से देख के, अंदर कुछ नहीं है, यानी एनालिसिस कुछ नहीं किया जो चाहिए, और केवल मॉडल बनाना आ गया, ठीक है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल। नेक्स्ट पार्ट वैल्यूएशन, नेक्स्ट पार्ट वैल्यूएशन, पुल करके वैल्यू निकालेंगे शेयर का अलग अलग मेथड से। नेक्स्ट पार्ट ईएसजी, क्या बोला? ईएसजी का फुल फॉर्म, ई का फुल फॉर्म एनवायरमेंट, एस फॉर सोशल, जी फॉर गवर्नेंस, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। एक कंपनी जो है, एक मिनट ध्यान देना, एक कंपनी अपने लेबर को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, जैसे टाटा ग्रुप, दे हैव बीन नोन टू ट्रीट देयर स्टाफ वेरी नाइसली। वन वुड से डेट्स, अभी तो टीसीएस फायर की है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज टाटा ग्रुप हैज ऑलवेज बीन नोन टू ट्रीट इट्स एम्प्लॉईज वेरी नाइसली। ये एक वो है, इट इज अबाउट ई और एस और जी, एस, ठीक है। हाउ डू यू ट्रीट द सोसाइटी एट लार्ज, कस्टमर्स एंड employees and all that, that is a part of S. It shapes the brand of the company, it shapes the brand of the company, S, okay। एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, किसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज़्यादातर लोग मैनेजमेंट वाले हैं। कौन से? मैनेजमेंट, जो लोग चला रहे हैं वही लोग ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, इज द ऑफ द कंपनी। Now this is poor governance. What governance? Poor governance. ये एक कंपनी है जिसमें एक पर्टिकुलर फैमिली या पर्सन ओन करता है 40-45% स्टेक, तो where does power lie in the company with that family? Power lies in that family. There is no distribution of power. That's poor governance. What is that? Poor governance. That's governance. Where does the power reside in the company? Would the minority shareholders be catered to? क्या decision? Hard questions are asked at the AGM. एनुअल जनरल मीटिंग में क्या टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पहुंच पाते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि आज कोई डेमोक्रेसी है सपोज अपना, तो हमने क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वी कैन आस्क व्हाटएवर वी वांट टू आस्क एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट आर आस्किंग द गवर्नमेंट। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो गवर्नेंस एंड ई ऑब्वियसली एनवायरमेंट समझ में आ रहा था आप लोग को, ठीक है। तो एक लार्जर चीज़ बता दूँ, जो लोग कंपनीज को रन करते हैं ना, जो लोग कंपनीज को रन करते हैं, इलॉन मस्क, उसका पैकेज पता है कितना है अभी टेस्ला में? $30 बिलियन। इलॉन मस्क का पैकेज है अभी टेस्ला में $30 बिलियन एनुअली। फिर से बोल दूं, $30 बिलियन। और कर क्या रहा था वो? अपने को दिख रहा था, ठीक है। एनीवेज, ये लोग जो कंपनीज को रन करते हैं, खैर इलॉन मस्क एक्सेप्शन हो गया, इन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर आता है कि अच्छे से क्यों नहीं चला रहे, कंपनी का रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा है, शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है वगैरह। तो ये लोग केवल तरकीब लगाते रहते हैं कैसे अपने आप को बचाए कि हम लोग पे क्लेम नहीं कर पाए कोई। तो ये लोग सोचे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग मंदिर बनाए थे,
हम लोग स्कूल बनाए थे, हम लोग हॉस्पिटल बनाए थे, तो जो लोग बाकी एजीएम में बोलेगा कैसे बोले, अब क्या बोले, कैंसर का हॉस्पिटल बनाए थे, तो अपना पैसा से बनाना, यहाँ पे जॉब क्या आना चाहिए, अपना पैसा से बना। तेरा तो 30 बिलियन आ रहा है, और जुगाड़ कर ले और लेवरेज ले ले, अपना पैसा से बना। नहीं, हम लोग इन्वायरमेंट को देखभाल कर रहे थे। ESG जो है ना इज अ बिग स्कैम। इट हैज बीन मेड बाय दीज पीपल हु डू नॉट वांट टू बी अकाउंटेबल, बिकॉज जैसे ही तुम उन पे उंगली उठाएगा, कंपनी ऐसा क्यों चला, उन लोग के पास 4 चीज और बोलने के लिए रहेगा। नहीं, हम लोग तो सोसाइटी का देख रहे थे। Are you understanding? Because you can't make them accountable when they will tell you about this or that. And जो कंसल्टेंसी फर्म्स अब आते हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स मैकेंसी और ये BCG, इनको और मजा आता है। वाह, सारे कंपनीज लोग ESG का कंसल्टेंसी लेंगे, टाई पहन के जाएंगे, फिर ESG सेटअप करेंगे कंपनी में, उसका मिलेगा 10 करोड़ 20 करोड़। एनालिस्ट लोग जो है, जो लोग पढ़ रहे हैं क्लासेस, वो ESG के ऊपर जॉब मिलेगा, कितना इजी है। जब मेरा ही नहीं है ESG पे ज्ञान देना है केवल, माने देयर इज अ पर्टिकुलर पूरा का पूरा इंडस्ट्री ऊपर से नीचे तक जो चाहता है कि ESG जैसा चीज आए। 5 7 10 साल में ESG लुट जाएगा, फिर नया चीज आ जाएगा, आना भी चालू हो गया। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग, क्या सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग, फिर आ जाएगा मॉरल साइंस, कुछ ना कुछ लाते रहेंगे करने के लिए धंधा, ठीक है। बट अपने को शुड बी के बजाय इसका बात करना चाहिए। ESG इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एक्चुअली वर्किंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, पीपल आर यूजिंग इट, तो वील हैव टू नो अबाउट इट। तो CFA इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ESG का ज्ञान रहता है। सेकेंड लास्ट ज्ञान, 7th लास्ट पार्ट है रिस्क एनालिसिस। क्या है? रिस्क एनालिसिस, ठीक है। लास्ट पार्ट क्या बोला? रिस्क। अभी लर्न करवा रहा हूँ। उसके पहले वाला पार्ट ESG, उसके पहले वाला पार्ट वैल्यूएशन, उसके पहले वाला पार्ट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल, ये मॉडल फोरकास्ट एंड ऑल दैट। उसके पहले थियरी था सारा, फ्रंट मैटर, रिकमेंडेशन, कंपनी डिस्क्रिप्शन, इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग, ठीक है। तो ये मैं भी थोड़ा सा लास्ट की तरफ आप लोग को मेमोराइज कराने लग गया था, बिकॉज आई वॉन्ट दैट 8 पार्ट्स टू बी नोन। कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। लेट्स राइट डाउन। तो LOS है कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, उसके अंदर पार्ट 1 फ्रंट मैटर, पार्ट 2 रिकमेंडेशन, पार्ट 3 क्या था? कंपनी डिस्क्रिप्शन, पार्ट 4 इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग। काश ये वाला पार्ट भी ध्यान रखो, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग वर्ड भी है कि सर ये कंपनी का इस इंडस्ट्री में औकात क्या है, ये जो स्ट्रैटेजी लगाता है वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। पार्ट 5 जो बड़ा PL बैलेंस शीट दिखाए थे, व्हाट इज इट? फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल। पार्ट 6 वैल्यूएशन, जो टारगेट प्राइस निकला था ना शुरू में, टारगेट प्राइस, वो कोई फॉर्मूला से आया होगा, वैल्यूएशन। पार्ट 7 ESG कंसिडरेशंस। पार्ट 8 रिस्क, ओके, रिस्क फैक्टर्स लिख दो, I don't know the exact word, risk factors is okay. What are the upside and downside risk factors? ये 8 पार्ट्स है रिसर्च रिपोर्ट का। हैविंग सेड दैट, इसके ऊपर एक वर्ड लिखना है ICR, इनिशियल कवरेज रिपोर्ट, इनिशियल कवरेज रिपोर्ट, इनिशियल कवरेज रिपोर्ट।
बिकॉज व्हाट डू यू थिंक, एक कंपनी के एनालिसिस एक बार करना पड़ता है या बार बार करना पड़ता है? बार बार। तो थिंक अगर बार बार कंपनी का अपडेट करेंगे, हर क्वार्टर के बाद जब रिजल्ट आएगा ना तो अपडेट करेंगे कि नया डेवलपमेंट क्या हुआ, कंपनी ने क्या रिजल्ट दिया, क्या सोचे थे, तो उस केस में क्या पूरा का पूरा चीज़ वापस से लिखना चाहिए A to Z, कंपनी कौन सा है, डिस्क्रिप्शन नहीं ना, तब तो शॉर्टर होगा। दैट्स कॉल्ड सब्सीक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट। विच रिपोर्ट? सब्सीक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट। उस पर थोड़ा कमती मैटर होगा। यह है इनिशियल कवरेज रिपोर्ट, विच वी आर इमेजिनिंग दैट एक ऐसे पर्सन के पास जा रहा है जो डॉम डेवलपमेंट के बारे में कभी सुना ही नहीं है, यू हैव नेवर हर्ड अबाउट डॉम डेवलपमेंट, तो इट इज वेरी डिटेल्ड ना दिस वन, बट द सब्सीक्वेंट वन विल बी स्मॉल। ठीक है, 6-7 पेजेस का होगा वैसा। इनिशियल कवरेज रिपोर्ट, दिस इज द इनिशियल कवरेज रिपोर्ट। Where do you think, in which part there will be discussion about business model? Think and say, take your time. कौन से part में we will have discussion about business model? कौन से part में, please apply your brain, कौन से part में business model का discussion है? Part 3, company description. कंपनी डिस्क्रिप्शन में कंपनी का बिजनेस मॉडल का डिस्कशन है, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अभी लिखने का जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, चीज़ें याद रहे। कंपनी क्या करता है, क्या सेल करता है, कैसे सेल करता है। टेस्ला डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल करता है या रिटेल चेन के थ्रू सेल करता है, हायर प्राइस पे सेल करता है कि लोअर प्राइस पे सेल करता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है या कॉस्ट लीडरशिप है। अंडरस्टूड? कहाँ कहाँ सेल करता है, इंडिया में, बाहर में, कौन से रीजन में कितना सेल है उसका, कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल करता है, क्या क्या सेगमेंट्स है, वैरायटीज है, ब्रेकअप क्या है उसका। अंडरस्टूड? ये सारा का सारा आपको मिलेगा कंपनी डिस्क्रिप्शन में। कंपनी डिस्क्रिप्शन इज फिल्ड अप विथ चार्ट्स। क्या चीज़ का चार्ट्स? रेवेन्यू ब्रेकअप, ओके, रेवेन्यू में सेगमेंट वाइज, ज्योग्राफी वाइज, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है, ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ द रेवेन्यू, वो सारा ब्रेकअप रहेगा आपका इन द कंपनी डिस्क्रिप्शन। डिसएग्रीगेटेड चार्ट्स आर गिवन, हर एक चीज को तोड़ तोड़ के। जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन वर्ड है ना पार्ट 4 में, उस पर फिर से कंपनी का स्ट्रैटेजी है। कंपनी का स्ट्रैटेजी एक बार पार्ट 3 में है, कंपनी का स्ट्रैटेजी फिर से एक बार पार्ट 4 में है। तो दिस कैन बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम कि बोलेगा कंपनी स्ट्रैटेजी कहां आता है। ठीक है, कि पार्ट 3 में आता है कि पार्ट 4 में आता है, तो बता दूं एक बार। कब पार्ट 4 में कंपनी के स्ट्रैटेजी का इवैल्यूएशन है। क्या है? इवैल्यूएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडस्ट्री, कि विल दैट वर्क इन दिस इंडस्ट्री। ओके, 3 में है व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, 4 में है इवैल्यूएशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। अंडरस्टूड? तो दोनों में आपको स्ट्रैटेजी दिखेगा, पार्ट 3 में भी, पार्ट 4 में भी। पार्ट 4 में इवैल्यूएशन है, ठीक है, ऑफ द स्ट्रैटेजी। पार्ट 5 में एक्चुअल एंड फोरकास्टेड पीएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो दिखेगा ही, उसके अलावा यह भी दिखेगा कि हर एक चीज का ड्राइवर्स क्या है, हर एक चीज का रेवेन्यू का ड्राइवर्स, कॉस्ट का ड्राइवर्स, वो सारा ड्राइवर्स का एनालिसिस आपको पार्ट 5 में दिखेगा। ठीक है, कैपिटल सोर्सेस का भी, कैपिटल यूजेस का भी जो ड्राइवर्स वो आपको पार्ट 5 में दिखेगा। आई थिंक जितना फीलिंग आया है, लिखे नहीं इसके अंदर अपने, आई नो वी हैव मिस्ड आउट बिकॉज एज अ टीचर एक चीज़ जरूर है कि मेरे को पढ़ाते समय लार्जर ऑडियंस वाइज ये जरूर पिकअप हो जाता है कि कब क्लास का एनर्जी लेवल लो हो रहा है, होता है ना, तो बिकॉज ऑफ विच आई कांट सस्टेन दैट, बिकॉज का मतलब मेरा भी लो हो रहा है, आई एम नॉट, तो इट्स बेटर टू कॉल ऑफ द क्लास देन। कभी ऐसा हुआ तो 45 मिनट्स पर छोड़ेंगे, बट नहीं पढ़ना है तो क्यों पढ़ेंगे, तो बिकॉज ऑफ विच आई ट्राई टू सी दैट कितना लिखाना है, कब लिखाना है, क्या नहीं लिखाना है। आई थिंक यू आर सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। लेट्स चेक आवर सेल्फ कि जो क्वेश्चंस एग्जाम टाइप है क्या आपने से अभी हो पा रहा है क्या इस सेक्शन से। लेट्स सी।